So, what is the story of water? You can read from here. I am also speaking, right? The drops of water suddenly soak into. A drops of water, हम यहाँ पे थोड़ा सा और लिख सकते हैं. In a bowl. Suddenly soak into opening the freezer and placing the bowl in freezer, right? So, some drops of water are present in the bowl and pin to put the bowl in the freezer. In the freezer, the drops could not move and attains a definite shape. Arjun, good afternoon, but I think you have joined yesterday also. और हमने कल वाला ही काम करना है. बाकी सब हमारे पास क्लासेस नहीं ज्वाइंट है. अर्जुन कल आया था. Raise your hands if you joined yesterday also. Yes or no? अगर कल आए थे तो अपना हाथ खड़ा करो. Ma'am, today this is sixth Dronacharya. मैम 6th ये नई क्लास ही है, मतलब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था कल. No, ma'am. The 5 classes of 6 that I joined today, they are different from yesterday. ओके ओके. मुझे थोड़ा सा ये अच्छा द्रोणाचार्य इज देयर, राइट? Yes. It just switched on and I'm just changing the name. ओके मैम, थैंक यू. So द्रोणाचार्य, okay. So now the question is, but I had told you that a bowl has some drops of water, right? Flowing water you can see. Drops of, यहाँ पे हम थोड़ा सा और ठीक कर लें. आपने सिर्फ समझना है. Flowing water, and Pinto placed that bowl in the freezer. In the freezer, the drops couldn't move or flow and attains a definite shape. Now, from Emmy, why this happened? Why the drops were flowing in the bowl when they were outside, but why now they couldn't move when put in the freezer? Right? Emmy, yes, raise your hands if anybody knows the answer. When the bowl was placed in the freezer, the water droplets couldn't flow and they attained a definite shape. Why? Yes, Emmy, raise your hands. Yes, there is middle row second boy. Yes, come on. Come close to the mic. Switch on the mic. Ma'am, please assist him. हाँ जी, बोलो बेटा. दोबारा से जोर से बोलो. हाँ. Yes, because the water droplets freezed or frozen. They got frozen. बैठो बेटा. Very good, very good. So here, what is the process which is taking place? Freezing. First process है freezing का. कि freeze हो गई. Why they couldn't move and why they attains a definite shape? So, you know, solids have definite shape. ये लिखना नहीं है, लिखना मैं बताऊंगी अब. So यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है? फ्रीजिंग की. एंड व्हाई दे अटेन? क्योंकि आइस, पानी की तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट आइस की तो डेफिनेट शेप हो गई ना. सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. सो नेक्स्ट डे Pinto's mother took out the bowl from freezer and kept on the slab. किचन की स्लैब पे रख दिया bowl.
The family in emergency went out of station for few days. Family तो चली गई. The water drops got relaxed, started flowing. So यहाँ पे freezing थी. Now how they started flowing? Which process has occurred? Grammy, raise your hands. When the ice is taken out, after some time, it started flowing. How? Which process has taken place? Evaporation, condensation, melting, freezing. क्या है? Yes, ये लड़की खड़ी है बेटा. The girl who is standing, come. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. पहले माइक ऑन करो. फ्रॉम ग्रैमी से अभी हम बात कर रहे हैं. हाँ. It is called melting. द्रोणाचार्य बेटा, एक मिनट आप बैठो. द्रोणाचार्य, यू सेड Melting. इट इज मेल्टिंग. वेरी गुड. द्रोणाचार्य से भी आंसर आया हमें, ग्रैमी से भी. सो मेल्टिंग. वेरी गुड. बैठो बेटा. एंड देन स्टार्टेड फ्लाइंग इन द एयर. पहले फ्लो किया, देन फ्लाइंग इन द एयर. बुकर, एनीबडी, व्हाई दे स्टार्टेड फ्लाइंग? अभी हम बुकर से पूछ रहे हैं, बाकी सब बैठेंगे. एनीबडी? पहले बाउल में थे, उसके बाद वहां से उड़ने शुरू हो गए हवा में. कैसे? कौन सी प्रोसेस हुई? बुकर, यस, द गर्ल ऑन द फर्स्ट बेंच. अभी हम पीछे वाले बेंचेस पे भी आएंगे. आ जाओ, आ जाओ. माइक ऑन करो बेटा पहले. Evaporation. Evaporation. Very good. बैठो बेटा. Very good. Started flying due to evaporation. Very good. Then these water drops, उसके बाद fly कर रहे थे. Then they exit out of the window and with air they reached Ladakh. Right? These water vapors, they reached Ladakh. The temperature was very low. Let us say minus 35 degrees centigrade. It's minus. The vapors, the water vapors freeze directly and fall as snowflakes. Vapors freeze directly, which is the process. Means they did not change into liquid form. The vapors freeze directly. Yes, Borlaug. Borlaug. सीधे बैठो बेटा. जहां पे वेपर्स, गैस जो है, उसने सीधा सॉलिड बना दिया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. यस, द फर्स्ट बॉय, मिडिल रो, आ जाओ. पहले माइक स्विच ऑन करो और फिर बोलो बेटा. माइक पहले बेटा, माइक ऑन करो. यस. Sublimation. Sublimation. नॉट सब्लिमेशन. सब्लिमेशन होता है सॉलिड टू गैस. इट्स गैस. Deposition. इट इज Deposition. deposition. Very good. It is deposition. Clear. I think you are clear about what are these terms: melt, freeze, deposition, then sublimation, then evaporation, then condensation. Right? I am giving you few terms, few processes. You have to tell me whether this is evaporation की क्या है. चलिए, ये फटाफट से लिखो. Right on. अपनी कॉपी में लिखना है. First is, you have to tell me the processes. Write down first. It is drying of wet clothes.
drying of wet clothes. Cooling effect. Cooling effect due to drying of sweat. Formation of clouds by water vapors. Disappearance of naphthalene tablets. Kept in warm clothes. Then burning of camphor. Eating of iodine tablets directly to form purple vapor. Water vapors changing into ice flakes directly. Appearance of water drops on the surface of ice filled glass. चलिए जी, डन, लिख लिए. So quickly you have to, हमने किन प्रोसेसेस में से लेना है? Evaporation, condensation, then sublimation, and then deposition. You have to choose any one of these for these processes. चलिए जी, सबसे पहले हम द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य में बेटा टुवर्ड्स विंडो लास्ट में जो दो बॉयज बैठे, आ जाओ जल्दी से, फटाफट भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फटाफट. बाकी सब लिखो, डोंट क्लोज योर कॉपीज, राइट दीज प्रोसेसेस. चलिए माइक ऑन कीजिए द्रोणाचार्य में. हाँ जी बताइए बेटा, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स कौन सी प्रोसेस है? Evaporation.
Evaporation. First student, go to your seat. Very good. Evaporation. Second student, cooling effect due to drying of sweat. आप पसीना आया हुआ है, पंखे के नीचे बैठते हो, पसीना गायब हो जाता है, कैसे गायब होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? इसको बोलने दो, इसको बोलने दो बेटा। हाँ, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन होता है बेटा लिक्विड से वेपर, कंडेंसेशन होता है लिक्विड से, सॉरी, गैस से लिक्विड बनना। यहाँ पे तो हमारा पसीना कहाँ गया? लिक्विड है पसीना हमारा। देखो, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, फिर आंसर देना है। इवेपोरेशन होता है, ध्यान से सुनो, लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन होता है गैस से लिक्विड। सब्लिमेशन गैस से सीधा सॉलिड, एंड डेपोजिशन सॉलिड से गैस। अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? ड्राइंग ऑफ स्वेट, पसीना सूख गया, कैसे? जोर से। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, बिल्कुल। कहाँ जाता है? वेपर्स बन के उड़ जाता है, हवा में चला जाता है। ठीक है, दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट इज बुकर। बुकर में बेटा टुवर्ड्स वॉल, दीवार की तरफ, पीछे जो दो लड़कियां, दोनों आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फिर इंग्लिश की क्लास भी लगनी है। हाँ जी, जल्दी से आओ, फटाफट से, फटाफट आओ, फटाफट। दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, माइक ऑन करो। हाँ जी बुकर, बेटा बताइए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बाय वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या करते हैं? वाटर वेपर्स इकट्ठे होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं, राइट? वाटर वेपर्स से क्या चेंज हुआ? वेपर्स इज गैस है, इट चेंजेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड फॉर्म क्लाउड। तो कौन सी प्रोसेस हुई बेटा यहाँ पर? कंडेंसेशन। Yes, condensation. Gas changes into liquid droplets. This is condensation. चलिए नेक्स्ट गर्ल, डिसअपियरेंस। आपकी मम्मा बेटा जब सर्दियों में आपके कपड़े संभालती है तो नेप्था की गोलियां रखती है, छोटी छोटी सी गोलियां। अगले सीजन में आपको वो कहीं नजर नहीं आती। कहाँ गई वो? कहीं आपने, आपके कपड़े गीले भी नहीं है ना, कि वो पिघल गई। सो बताइए, डिसअपियरेंस ऑफ नेप्थलिन टेबलेट्स केप्ट इन वार्म क्लोथ्स। देखो, हमें गैसेस नहीं दिखती है, जब डिसअपियर है इसका मतलब गैस में चेंज हो गया कुछ। ठीक है, लिक्विड भी हमें दिखता है, सॉलिड भी हमें दिखता है, गैस नहीं दिखती है, ये याद रखना है। तो यहाँ डिसअपियरेंस ऑफ नेप्थलिन हमने रखी, बट उसके बाद हमें कुछ भी नजर नहीं आया। कहाँ गई? कौन सी प्रोसेस हुई? मैम डिपोजिशन। बेटा डेपोजिशन क्या होता है? डेपोजिशन होता है, मैंने मैंने ना उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सब्लिमेशन इज solid into gas, I'm sorry, ये ठीक करना, and deposition is gas into solid, I'm sorry, दोबारा से। sublimation solid directly into gas, and deposition gas into solid. Now tell me, मैम सब्लिमेशन। sublimation, this is sublimation। चलिए बैठिए, ठीक करना ये जिसने लिखा हुआ है ना, दिस इज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ माई टंग। नेक्स्ट इज ग्रेमी। ग्रेमी में बेटा टुवर्ड्स विंडो, जो दोनों बच्चे बैठे हैं लास्ट बेंच पे, आ जाओ, जल्दी से आओ, आ जाओ, जो भाग कर आओ, भाग कर। यस, ऑफ कैंफर, कपूर बोलते हैं हिंदी में, हिंदी पंजाबी में कपूर बोलते हैं, उसको हम
जलाते हैं, बट जलने के बाद वो नजर ही नहीं आता कहीं पे, कहाँ गया? कपूर सॉलिड है, बर्निंग ऑफ कैंपर एंड इट डिसअपियर्स। बताइए कौन सी प्रोसेस? ग्रैमी, आई डोंट नो, डिस्कनेक्ट हो गया। बोरलॉग में, हाँ जी बोरलॉग में, कौन बता रहा है बोरलॉग में? नहीं बेटा आप नहीं, विंडो की तरफ जो दो लड़के बैठे हैं पीछे वो आए, दोनों आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बस बेटा फटाफट से खत्म करें हम इस। यस बोरलॉग, हाँ हाँ आप ही आओ विंडो की तरफ, हाँ। प्रेमी अगर आप बता सकते हो तो मुझे आंसर बताओ जल्दी से इसका। हाँ जी पहले बोरलॉग से पूछ लें। बोरलॉग बेटा माइक ऑन करो। Multi-position. क्या दोबारा से? Multi-position. ये सॉलिड है और ये किसमें चेंज हुआ? गैस में। तो क्या होगा? सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, आयोडीन सॉलिड है और इसने डायरेक्टली क्या बना दिया? पर्पल वेपर्स। व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ जी चले गए दोनों बोरलॉग में से, चलिए कोई बात नहीं। ग्रैमी बेटा आ जाओ, जिसका हाथ खड़ा है आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। ग्रैमी कोई आ जाओ, दो बच्चे कोई से आओ, माइक ऑन करो, बताओ जल्दी से। हीटिंग ऑफ आयोडीन टेबलेट्स डायरेक्टली टू फॉर्म पर्पल वेपर्स। अगेन डेपोजिशन, क्यों बेटा डेपोजिशन? अगेन मैं कह रही हूँ सॉलिड टू गैस। सब्लिमेशन है बेटा, डेपोजिशन है गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, वाटर वेपर चेंजिंग इनटू आइस डायरेक्टली। दोबारा से ध्यान से देखो, गैस इनटू सॉलिड क्या आएगा? Deposition. डेपोजिशन, बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट एमी, हाँ जी एमी, एमी बेटा रेज योर हैंड्स एमी। यस, मिडिल रो में से सबसे पीछे एक लड़का बैठा है, ये आ जाए। सबने ये लिखनी है चीजें और आपने पूरा पूरा लिखना है। Substation, why this happen? I will tell you next time. बैठो बेटा। So we will do various activities next time. आपको हम activities के through दिखाएंगे, ठीक है जी। चलिए within 2 minutes the English teacher will come and tell you something, right? तो अब आप अपनी कॉपी में लिख लो English and I am rejoining within 1 minute.